شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد تیسری جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 13واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک نظم پڑھیں گے جس نظم کا عنوان یعنی ٹائٹل ہے درختوں سے محبت۔ چلیے شروع کرتے ہیں، میں اسے گا کر پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ درختوں پر ہے چڑیوں کا بسیرا، درختوں سے ملے سایہ گھنیرا، خوشی سے چہچہاتے ہیں پرندے، خدا کی حمد گاتے ہیں پرندے، مسافر دھوپ سے گھبرا کے آئیں تو ٹھنڈی چھاؤں میں آرام پائیں، سڑک میدان رستوں پر گھروں پر درختوں کا اثر ہے موسموں پر، بڑے بوڑھے ہمارے کہہ گئے ہیں درختوں سے ہزاروں فائدے ہیں، بڑوں کی یہ نصیحت یاد رکھیں، درختوں کو سدا آباد رکھیں، درختوں کی حفاظت ہم کریں گے، درختوں سے محبت ہم کریں گے۔ اس نظم کو لکھا ہے مدحت الاختر نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں مشق کا آپشن ہے، اور پہلی مشق میں وہی جو پرانا طرز ہے، لفظ اور معنی۔ درخت کا معنی ہوتا ہے پیڑ، بسیرا کا معنی ہے رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، وہ جگہ جہاں چڑیا رات بسر کریں، گھونسلہ۔ حمد کا معنی ہے وہ نظم جو خدا کی تعریف میں ہو، مسافر کا معنی ہے سفر کرنے والا، نصیحت کا معنی ہے وہ بات جو اچھا کام کرنے یا برائی سے بچنے کے لیے کسی سے کہی جائے، عموماً ایسی بات بڑے لوگ اپنے چھوٹوں سے کہتے ہیں۔ حفاظت اس کا معنی ہے خطرے یا نقصان سے بچاؤ، دیکھ بھال۔ نمبر 2، غور کیجئے، درخت بہت کارآمد اور مفید ہوتے ہیں، ان سے پھل تو ملتے ہی ہیں، ساتھ ہی ہوا بھی صاف ہوتی ہے، ان کے سائے میں سکون ملتا ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس موجود پیڑوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور نئے پیڑ لگانے چاہیے۔ نمبر 3 میں دیکھیں، سوچئے، بتائیے اور لکھیے، یعنی سوالات کے جوابات دینا ہے۔ چڑیاں کہاں بسیرا کرتی ہیں؟ تو آشیانوں میں۔ مسافر دھوپ سے بچنے کے لیے کہاں، یعنی درختوں پر آشیانے رہتے ہیں وہاں۔ مسافر دھوپ سے بچنے کے لیے آرام کہاں کرتے ہیں؟ درختوں کے سائے میں۔ درختوں سے کیا فائدے ہیں؟ پھل ملتے ہیں، ہوا ملتی ہے اور ہوا صاف ہوتی ہے، اس کے بعد سایہ بھی ملتا ہے۔ درختوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہوا کی صفائی کے لیے ضروری ہیں، یہ پھلوں کے لیے ضروری ہیں۔ درختوں کے بارے میں بڑے بوڑھے کیا کہہ گئے ہیں کہ درختوں کی حفاظت کرو، درختوں کو آباد رکھو۔ نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں، ان مصروں کو صحیح لفظ سے پورا کیجئے۔ اب یہاں پر 2 لفظ دیے ہوں گے، ایک صحیح اور ایک غلط، تو آپ کو یہاں پر صحیح لفظ کا استعمال کرنا ہے۔ درختوں پر ہے کس کا بسیرا؟ پرندوں کا یا چڑیوں کا؟ تو چڑیوں کا بسیرا۔ خدا کی کیا گاتے ہیں؟ حمد، خدا کی حمد گاتے ہیں پرندے۔ مسافر دھوپ سے گھبرا کے آئیں، درختوں کو صدا، سین سے صدا، اور سواس سے جو صدا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے آواز، اور یہ جو سین سے صدا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ درختوں کی حفاظت ہم کریں گے، یہاں لکھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 میں دیکھیں، ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ درخت بہت اچھے اور مفید ہوتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ درخت بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ مسافر تھک گیا، سدا آباد رہو، حفاظت اپنی خود کرو، ہر جگہ بسیرا نہیں کرنا چاہیے، آرام بھی فائدہ مند ہے۔ نمبر 6 میں دیکھیں، ان لفظوں کے نیچے ان کے متضاد لکھیں۔ متضاد مطلب اپوزٹ ورڈ، مخالف لفظ۔ تو خوشی کا کیا ہوگا؟ غم،
धूप का होगा छाँव, ठंडा का होगा गर्म, आराम का होगा काम, बूढ़ा का होगा जवान, फ़ायदा का होगा नुकसान, मोहब्बत इसका नुकसान, इसका मुतज़ाद जो होगा वो होगा नफ़रत, बड़ा इसका मुतज़ाद होगा छोटा। नंबर 7 में नज़्म से ऐसे 3 मिसरे लिखिए जिनमें दरख्तों आया हो। तो जिन जिन मिसरों में दरख्तों आया है उन्हें आप सबक से चुन करके यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद देखें सबक नंबर 8, इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। वाहिद यानी यहाँ ये प्लूरल है, बहुवचन दिए हुए हैं इस लाइन में। देखें दरख्तों, दरख्तों यानी बहुत से दरख्त, तो बहुत से जब आ गया तो ये बहुवचन यानी प्लूरल हो जाएगा। तो उसका हमें एक वचन लिखना है, वाहिद लिखना है। तो वो क्या होगा, दरख्त, मौसमों का मौसम, हज़ारों का वाहिद होगा हज़ार, बूढ़ों का वाहिद होता है बूढ़ा, रस्तों का होता है एक रास्ता, घरों का वाहिद होगा घर, चिड़ियों का होगा चिड़िया, बड़ों का होगा बड़ा। नंबर 9 में पढ़िए, समझिए और लिखिए। क्या पढ़ना है, समझना और लिखना है। देखें दरख्तों के फ़ायदे पर 5 जुमले लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होता है लेकिन माना और इमला के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं। ये बता रहे हैं कि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो पढ़ने में यानी आवाज़ उनकी एक जैसी होती है, जब हम उनका तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं या फिर उच्चारण करते हैं तो आवाज़ एक जैसी रहती है, लेकिन माना और इमला, इमला कह सकते हैं डिक्टेशन इंग्लिश में, हिंदी में हम कह सकते हैं शुद्ध लेख, तो ये जो होता है मुख्तलिफ होगा लेकिन आवाज़ एक जैसी होगी। अब देख लें ये सदा और ये सदा दोनों को देखें, आवाज़ एक है लेकिन लिखने में ये सीन से लिखा जा रहा है, ये स्वाद से, तो ये तो हो गया इनका दोनों का इमला यानी डिक्टेशन। और माना के एतबार से देखें, इसका माना होगा हमेशा और इसका माना होगा आवाज़ लगाना, पुकारना। तो ये दोनों माना के एतबार से मुख्तलिफ हैं। पहले लफ्ज़ का मतलब हमेशा लेकिन दूसरे का मतलब क्या है, आवाज़। इन्होंने यहाँ लिखा है देखो, हमेशा लेकिन दूसरे का मतलब है आवाज़। इसी तरह नीचे लिखे हुए दायरों में से एक जैसे तलफ़्फ़ुज़ वाले लफ्ज़ों को उस्ताद की मदद से खाली खानों में लिखिए। आपको क्या करना है, यानी जो आवाज़ एक जैसे, जो अल्फाज एक जैसे हों उन्हें आप मिलता जुलता लिख करके और कोशिश करेंगे बॉक्स में लिखने की नीचे। तो अब देख लें, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था सदा, सदा ये हो गया। उसके बाद दूसरा है आम और आम, ये आम हो गया फल और ये आम हो गया कॉमन यानी जन, कहते हैं जनता, उसके लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद आरी, खाली होने के माने में आरी, और अलिफ मद के साथ जब आरी होगा तो काटने वाला, वो एक कह सकते हैं ब्लेड, जिससे कोई चीज़ हम काटते हैं, लकड़ी काटते हैं तो उसे आरी कहते हैं। उसके बाद देखें ये हो गया, इसको इल्म नहीं पढ़ेंगे हम, इल्म भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ आलम पढ़ा जाएगा, आलम झंडा। और ये जो अलम है उसे हम क्या पढ़ेंगे, दर्द के माना में होता है, ठीक है। उसके बाद देख लें ये जो नज़ीर है डराने के माना में है, ये जो नज़ीर है इसका माना है मिसाल। ये देखें कसरत टूटना और ये कसरत ज़्यादा के माना में है। ये सवाब बेहतर और ये सवाब दुरुस्त के माना में है। और जाल, ये जाल का माना कोई भी नेट, और ये जाल जो होगा वो नकली के माना में है। ये देखें अरब, ये जो अरब बोला जाता है तो कहते हैं ना एक अरब दो अरब, इस तरीके से अरब लिखा जाएगा। और ये जो है ये अरब यानी एक मुल्क या फिर एक ख़ास सरजमीन, ठीक है। उसके बाद देखें ये हव्वा है, हज़रत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। हिव, और ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर लिखा है हव्वा बड़े है से और नीचे लिखा हुआ है हव्वा, या इसको आप हवा भी पढ़ सकते हैं, तो इसका माना है डर। तो इस तरीके से आप इन्हें एक एक साथ लिख सकते हैं।
उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। नंबर 10 भी देख लें और नंबर 11 भी देख लें। नज़्म में जो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुए हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। तो आप इस देखें कि उसमें कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुए हैं। और तुम्हारा, हमारा, तुम्हारा, बसेरा, दरख्तों, नफ़रत, गम, गर्म। तो जब आप नज़्म पढ़ेंगे उसमें से देख लें जो इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। जैसे अब देख लें ये लफ्ज़ जलील है जो नज़्म में नहीं आया, तो इस तरीके से आप दायरा बनाएं जो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। नंबर 11 में इन तस्वीरों के बारे में दो दो जुमले लिखें। रास्ते है इसके बारे में दो जुमले लिखें। और उसके बाद ये दरख्त है इसके बारे में दो जुमले लिखें। उसके बाद क्या है, चिड़िया है, इसके बारे में आप दो जुमले लिखें। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह।